Hello students, welcome to Acmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. Alright, we'll be revising the complete chapter concepts along with MCQs discussion. Alright, now in this lecture we'll be discussing questions on inverse trigonometric functions. Alright, you know it's an important chapter, and to do questions based on this you require the properties of inverse trigonometric functions, domain and range of inverse functions, and you also require trigonometric formulas. Alright, तो start करते हैं आज के MCQs बेटा. But before we do that, don't forget to subscribe to our channel बेटा, so that you get more videos on MCQ discussions and it will help you to revise your chapter thoroughly. Alright, so let us see now. Look at the first question on your screen here. Now, as you can see, the first question here is that if tan inverse of 1 minus x upon 1 plus x is half of tan inverse x, then we have to find the value of x. Let's see how to do this question. अब देखो हमें दिया क्या है? What is the equation that we are given? It is given to be tan inverse of 1 minus x upon 1 plus x. This is equal to 1 upon 2 tan inverse of x. अब हम एक काम करते हैं, देखो इसमें सबसे पहले जो हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे दैट विल बी कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बेटा. वी नो दैट इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y. ये होता है. Now let us solve further. So you can see on the left hand side we can apply this property. In place of x we have 1 and in place of y we have x. So let us apply. We are getting tan inverse of 1 minus tan inverse of x will be equal to So let's apply this property now. In this term on the left hand side beta, as you can see, in place of x we have 1 here and in place of y we have x. Alright, so this property can be applied over here. So we are getting tan inverse of 1 minus tan inverse of x is equal to 1 upon 2 tan inverse of x. तो ये प्रॉपर्टी हमने इस टर्म में अप्लाई करी है. Now it is very easy to solve. As you can see, this term can be taken on the other side. So we are getting tan inverse of 1 is equal to how much? 1 plus 1 by 2, that is 3 by 2 tan inverse of x. Now let us put the value of tan inverse of 1, which is pi by 4. So we have pi by 4 और इसको इधर ले आओ बेटा, it will become 2 by 3. तो pi by 4 into 2 by 3 will be tan inverse of x. So that means we have tan inverse of x how much? This will be pi by 6. So that gives the answer that x will be equal to tan of pi by 6. You know that tan pi by 6 means tan 30 degree, which is 1 upon root 3. So that is going to be the answer. Let us check which option is correct. Alright, तो ये देखो पहला क्वेश्चन आपका. तो यहाँ पे as you can see बेटा 1 by root 3 means C option. So correct option will be C. Is it okay? तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन था. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Look at the next question now. Question is that if sin inverse 1 by 3 plus sin inverse 2 by 3 is sin inverse x, then we have to find x. अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड आपकी इस फॉर्म में है sin inverse of x plus sin inverse of y. Is it all right? तो हम इसकी बेटा प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. You know that this is equal to sin inverse of x into under root of 1 minus y square plus y into under root of 1 minus x square. So on the left hand side we are going to apply this property. So let's start the equation. Alright, again we have to find x. It's an equation. So equation, let us first of all write. We have sin inverse 1 by 3 plus sin inverse of 2 by 3 is equal to sin inverse of x. So on the left hand side I am going to apply this property which I have written here, that it will be sin inverse x into under root of 1 minus y square plus y into under root of 1 minus x square. In place of x we have 1 by 3. In place of y we have 2 by 3. So let me apply the property.
we are getting sine inverse of 1 by 3 under root of 1 minus 2 by 3 whole square. Alright, and then we have plus 2 by 3 under root of 1 minus 1 by 3 square. This will be equal to sine inverse of x. Now let's simplify the terms inside the bracket. So what are we getting? We are getting sine inverse of 1 by 3 under root of 1 minus 4 by 9. Then we have plus 2 by 3 under root of 1 minus 1 upon 9. This is equal to, this is 1 minus 1 upon 9. So this is equal to sine inverse of x. अब देखो ये वाली एक्सप्रेशन जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ऑलराइट, देखो कितना आ गया. दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1 by 3. दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 5 by 3, isn't it? आगे चलते हैं. दिस इज 2 by 3, तो अंडर रूट ऑफ 8 by 9 कितना होगा? Yes, 2 root 2 divided by 3, and this is equal to sine inverse of x. So that means we are getting that sine inverse of x जो है बेटा वो किसके इक्वल हो गया? यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर LCM ले लो 9 and numerator is root 5 plus 4 under root of 2. ये हमारे पास आ गया. तो कंपेयर कर लो. इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू is coming out to be under root of 5 plus 4 under root of 2 divided by 9. Let us check which option is correct. ठीक है ना, ये आंसर है. कौन सा? अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 9. तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन बेटा हमारी करेक्ट है. तो यहाँ पे देखो, दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. आप नोटिस करो, रूट 5 प्लस 4 रूट 2 बाय 9 इज सी ऑप्शन. इसका मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी. गॉट इट? तो ये वाला क्वेश्चन हमारी इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था. तो इन एवरी क्वेश्चन यू विल बी सीइंग दैट वी विल बी यूजिंग प्रॉपर्टीज ओनली. तो अच्छे से याद करनी है प्रॉपर्टीज. एक बार ही प्रॉपर्टीज याद हो गई तो क्वेश्चंस इसके फटाफट हो जाएंगे. इनवर्स के बेटा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होते. ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखो. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अगेन सॉल्व करना है. सोल्यूशन सेट हमें इस इक्वेशन का चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स. लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट. तो देखो इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x. अब देखो ये साइन इनवर्स है, ये 2 tan इनवर्स x है. अगर लेफ्ट साइड tan इनवर्स में होती तो हम 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते. इज इट ऑल राइट? यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x की आप चाहो तो साइन इनवर्स की टर्म्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर भी सकते हो. देखो दो तरीके हैं इसको करने के. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू फर्स्ट मेथड विच इज विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी. वो क्या है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो tan इनवर्स x इज थीटा. तो अगर ये हमारे पास थीटा है, लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग. वी विल बी गेटिंग x टू बी इक्वल टू tan थीटा, इजंट इट? तो हमारे पास इक्वेशन बन गई साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा. तो x हो गया बेटा हमारे पास साइन 2 थीटा. All right, because we have the value of tan theta in terms of x, तो इसीलिए sin 2 थीटा को लिखेंगे in terms of tan theta. तो फॉर्मूला लगा दो sin 2 थीटा का tan की टर्म्स में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. यही होता है ना. अगर tan 2 थीटा होता है तो नीचे माइनस होता है बेटा. sin 2 थीटा के फॉर्मूले में नीचे हमारे पास क्या होता है? प्लस होता है. नाउ यूज दैट tan थीटा इज x. सो वी हैव x इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. सो x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x. अब देखो इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल वाली टर्म कैंसिल नहीं करते, तो आप इस टर्म को इधर लेकर आओ. तो इन टेक x कॉमन. वी हैव 1 प्लस x स्क्वायर minus 2 will be equal to 0. Never cancel x over here because you will lose out on one root. तो कभी भी आपके पास इक्वेशन होती है ना, तो न्यूमिरेटर में never cancel a term involving variable. It will give you roots. कॉमन लेना होता है उसको. तो इक्वेशन फैक्टराइज होके आ गई.
x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको देखो हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस फैक्टर विल बी 0 या ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये वाला। तो x की क्या क्या वैल्यूज आ गई ऑब्जर्व करो, 0 माइनस 1 एंड 1। सो दीज आर द वैल्यूज दैट x इज टेकिंग। ऑलराइट, तो देखते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो x is taking these three values 0, minus 1 and 1. So you can see minus 1, 1 and 0 is in C option. तो इसमें हमारी C option correct हो जाएगी। अब एक मेथड मैंने आपको ये बताया विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग फॉर्मूला फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो जो प्रॉपर्टीज बनती हैं वो फॉर्मूले से ही तो बनी है। आप इसमें ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। सेकेंड मेथड जो हम करेंगे कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास साइन इनवर्स की टर्म्स में भी होता है। इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो कैसे, साइन इनवर्स x हो गया हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ लुक एट द सेकेंड मेथड ओवर हियर। सेकेंड मेथड करते हैं, इज इट ऑल राइट? We are given the equation as sin inverse x is equal to 2 times tan inverse x. All right. Let me apply the property in second method. So this is equal to sin inverse of 2x upon 1 plus x square. Sin inverse cancel करो दोनों तरफ. We are getting x is equal to 2x upon 1 plus x square. अगेन सेम इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x। 2x लेफ्ट साइड पर लेकर आओ तो यह आ जाएगा। टेक x कॉमन फ्रॉम हेयर, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज 0। तो अगेन वी फैक्टराइज इट, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 0। सो वी आर गेटिंग रूट्स एज 0 माइनस 1 एंड 1। So x is taking these values, that is 0, minus 1 and 1. Alright? तो एक तरह से कह सकते हैं x is belonging to this set which contains these three elements. So आंसर हमने पहले देख लिया था बेटा, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो दोनों में से किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हो। सी ऑप्शन करेक्ट आ गई। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे मूव करें। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। फोर्थ क्वेश्चन ये है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमें बतानी है। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स के आगे 2 है, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे वो ये होगी कि 2 tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको पिछले में हमने साइन इनवर्स की टर्म्स में लिखा था, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पे दूसरी टर्म tan इनवर्स में है, तो इन दिस केस वी आर राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। प्रीवियस क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें लेफ्ट साइड पे साइन इनवर्स x था, तो 2 tan इनवर्स x को हमने साइन इनवर्स की टर्म्स में लिखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दूसरी टर्म tan इनवर्स में है, तो वी आर राइटिंग दिस प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी यूज होगी इस क्वेश्चन में वो होगी ये वाली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। This is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. All right, provided denominator is positive, that is xy is less than 1. So let's do this question now. तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन नहीं ये एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है। Let us denote it by y. All right, so we have 2 tan inverse of 1/3 and plus tan inverse of 1/2. Is it okay? So let us apply first of all this property. सबसे पहले हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ये वाली टर्म में। All right, let's see what do we get. तो let me apply this property now. तो ये देखो यहाँ पे y will be equal to tan inverse of, ये है ना 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के बदले में we have 1/3, तो 2 इंटू 1 अपॉन 3, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ x वी हैव दिस, और सेकेंड टर्म एज इट इज ही लिखो tan इनवर्स ऑफ 1/2।
Let's simplify the first term. So we have tan inverse of, inside the bracket we have 2 by 3, 1 minus 1 upon 9, that means it will be 8 upon 9 beta. Is it okay? ये हो जाएगा. And plus we have tan inverse of 1 upon 2. Let's see what do we get. So y is coming out to be tan inverse of 3 by 4 beta. ये हो जाएगा. Plus हमारे पास है tan inverse of 1 by 2. अब हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. tan inverse x plus tan inverse y is equal to this provided xy is less than 1. अब देखो यहाँ पे x है 3 by 4 और 1 कितना है, y कितना है 1 by 2. तो यहाँ पे x into y एक तरह से हो गया 3 by 4 into 1 by 2, which is equal to 3 by 8, isn't it? This is equal to 3 by 8, which is less than 1. So that means property applicable है. So what are we getting? We are getting y is equal to tan inverse of 3 by 4 plus 1 upon 2 divided by 1 minus 3 by 4 multiplied by 1 upon 2. This is to be solved now. अब देखो कैसे करना है इसको. Let us see. तो y will be equal to tan inverse of. Alright. इसमें LCM ले लो. It will be 3 plus 2, that is 5 upon 4. Look at the denominator. It will be 1 minus 3 by 8. Is it okay? So that means y is equal to, denominator simplify karo. 1 minus 3 by 8 will be 5 by 8. So y is tan inverse of 5 by 4 divided by 5 by 8. Got it? तो that means हमारे पास हो गया y is equal to tan inverse of कितना, 5 by 4 upon 5 by 8, मतलब 8 by 4, that is y will be tan inverse of 2. Is it okay? तो ये आएगा. तो let us check which option is correct. Alright. तो दो properties use हुई हैं, जैसे कि आपने देखा बेटा. एक हमने property use करी है ये वाली, as you can see कि 2 tan inverse x है tan inverse of 2x upon 1 minus x square, और एक हमने ये property use की है कि tan inverse of x plus tan inverse of y is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. आंसर हमारा आया है tan inverse of root 2, which is D option. तो correct option will be D. Is it okay? तो ये question था. Let's see the next question now. Look at now question number 5. We have to calculate tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3. अब देखो tan inverse 1 की तो वैल्यू हमें पता ही होती है pi by 4. We know that tan pi by 4 is 1. All right. इन दोनों की वैल्यू हमने निकालनी है. So it is based on property tan inverse of x plus tan inverse of y. Now what is it? It is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. और ये प्रॉपर्टी तब वैलिड है जब 1 minus xy is positive, that means xy is less than 1. अब यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर हम y ले लें बेटा, तो इट इज tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse of 3. Is it all right? अब आप ऑब्जर्व करो, अगर हम इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं तो वी हैव x इक्वल टू 2 and y is equal to 3, isn't it? Look here. We have x as 2 and value of y is 3. Now x into y is equal to 6, which is not less than 1. तो आप ये वाली प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. या तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता हो कि x और y पॉजिटिव हैं और xy ग्रेटर देन 1 है, तो वो अप्लाई कर दो. इज इट ऑल राइट? या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपने सिर्फ ये वाला केस याद किया हुआ है, इवन देन यू कैन डू द क्वेश्चन. देखो कैसे. What we can do is, हमें ये टर्म्स ऐसी लेनी है कि xy लेस देन 1 हो जाए ना. So what we can do is, I can write this as y is equal to tan inverse 1 is pi by 4. All right. Tan inverse 2 can be written as pi by 2 minus cot inverse of 2. Is it okay? And tan inverse 3 can be written as pi by 2 minus cot inverse of 3. Why? Because tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2. तो y हो गया pi by 4 plus pi minus. All right. Cot inverse 2 plus cot inverse 3. अब देखो 2 और 3 पॉजिटिव हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं ऐसे.
y can be written as pi by 4, ठीक है, प्लस पाई माइनस. अब देखो cot इनवर्स x होता है tan इनवर्स ऑफ 1 by x अगर x पॉजिटिव है. तो ये 2 और 3 पॉजिटिव हैं. दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1 by 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 by 3. नाउ नोटिस अब हमारी x की वैल्यू है 1 by 2 और y की वैल्यू है 1 by 3. अब x इंटू वाई आपका 1/6 है बेटा, विच इज लेस देन 1, इजंट इट? तो ये हमारे पास आ गया, सॉरी दिस इज लेस देन 1. तो अब प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली. तो अप्लाई करते हैं. लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. ऑलराइट, तो y विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ व्हाट डू वी गेट 1 by 2 plus 1 upon 3 upon 1 minus 1 by 2 into 1 upon 3. Let's simplify. Let's see what do we get. So we have y equal to pi by 4, all right, plus pi minus we are getting tan inverse of. Look at the numerator, 1 by 2 plus 1 by 3. If you take LCM, you will get 5 by 6. And denominator 1 minus 1 by 6 is also 5 by 6. That is, it is 1. So y is equal to pi by 4 plus pi minus tan inverse of 1. Alright, tan inverse 1 is nothing but pi by 4. So that means y is equal to pi by 4 plus pi minus pi by 4. Pi by 4 will get cancelled and we get value of y as pi. ठीक है ना, y की वैल्यू बेटा पाई आ गई. तो नाउ लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, तो देखो इसमें अब हम चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है. आंसर पाई आया है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज. तो दैट इज डी ऑप्शन. तो देखो मेन चीज ये थी कि आपने ये वाली जब प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो इंश्योर करना है कि x इंटू वाई शुड बी लेस देन 1. यहां पे x इंटू वाई लेस देन 1 नहीं था, तो आप इन दोनों टर्म्स में ये प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर सकते. हमने इनको कन्वर्ट करा tan इनवर्स 1 by 2 और tan इनवर्स 1 by 3 में. फिर x y 1 by 6 आ रहा था विच इज लेस देन 1. देन वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा. ठीक है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो क्वेश्चन नंबर 6. It is 2 sin inverse 1 by 3 plus cos inverse 24 upon 25. अब देखो ये तो cos inverse है, यहाँ sin inverse के आगे 2 है which we want to get rid of. तो इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? You know this property that 2 sin inverse x can be written as sin inverse of 2x under root of 1 minus x square. ऑलराइट, तो ये 2 हमारा हट जाता है. तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म में वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी टू गेट रिड ऑफ 2. ऑलराइट, सो लेट अस डिनोट द गिवन एक्सप्रेशन बाय y जिसकी हमें वैल्यू चाहिए. तो y इज 2 sin इनवर्स ऑफ 3 by 5 एंड प्लस वी हैव cos इनवर्स ऑफ 24 by 25. पहले हम सेपरेटली इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. देखो, let us obtain 2 sin inverse of 3 by 5 by using this property. It is sin inverse of 2x into under root of 1 minus x square. ये प्रॉपर्टी कहाँ से आती है? sin 2 थीटा के फॉर्मूले से, 2 sin थीटा cos थीटा, isn't it? तो अप्लाई करो, x के बदले में 3 by 5 है, तो राइट साइड पे भी we'll replace x by 3 by 5. So we have sin inverse of 2 into 3 by 5 multiplied by under root of 1 minus 3 by 5 का square. Is it okay? ये आ गया. So we have applied this property. Let's simplify it. So this is equal to sin inverse of 6 upon 5 under root of 1 minus 9 upon 25. Got it? Let's simplify further. So we have this equal to sin inverse of 6 by 5 रूट के अंदर आ जाएगा 16 by 25. So if you take it outside the square root, it will be 4 by 5. That means this term is now
साइन इनवर्स ऑफ 24/25। तो ये जो हमारा था 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5, इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ 24/25 बेटा। जस्ट अ मोमेंट, ठीक है ना। तो ये इसके इक्वल हो गया। अब हम यहां पुट कर देते हैं, ये देखो इसको रिप्लेस कर दो। Now let us obtain the value of y. All right. So now we are obtaining y. So look here, y will be equal to, now this first term can be replaced by sine inverse of 24/25 और second term हमारी है cos inverse of, look at this term, it is cos inverse of 24/25। अब तो आपको पता ही है क्या प्रॉपर्टी यूज होनी है, ये देखो। अब हम यहां पे ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x कितना होता है, π/2, प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x विच इज -1 to 1। ऑलराइट, तो 24/25 आपका 1 से छोटा है तो डोमेन में है, तो अप्लाइंग दैट प्रॉपर्टी y विल कम आउट टू बी π/2। इज इट ऑलराइट? तो y की वैल्यू आई है π/2। लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन we have answer is π/2, that means A option will be correct. So we have used two properties, one was this to replace the first term और फिर उसके बाद we got this to be equal to sin inverse 24/25 और फिर हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है। तो अगेन these two properties यूज करके ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ऑलराइट, देखो कई बच्चों की आदत होती है कि इनवर्स के फंक्शंस में ना उनकी कोशिश होती है कि उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लें, बट ट्राई टू अवॉइड दैट, उससे क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाता है। तो मेमोराइज द प्रॉपर्टीज और इनवर्स का क्वेश्चन है अगर, तो इनवर्स में ही सॉल्व करने की कोशिश करो एज फार एज पॉसिबल, डू नॉट कन्वर्ट इट इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऑलराइट, let's move ahead. Look at the next question now, question number 7. सेवेंथ क्वेश्चन है, हमें वैल्यू चाहिए tan inverse x plus cot inverse of x plus 1 की। Let's see how to do that. Again let us denote it by y. Let y be equal to tan inverse of x plus cot inverse of x plus 1। अब देखो एक टर्म tan इनवर्स में है, एक cot इनवर्स में है, तो वी वुड लाइक टू कन्वर्ट दिस टर्म इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, क्योंकि इनकी डोमेन क्या होती है बेटा, ऑल रियल नंबर्स। तो इसका मतलब cot इनवर्स x को लिख सकते हो π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो लेट अस रिप्लेस नाउ दिस पर्टिकुलर टर्म बाय यूजिंग दिस। So I can write y to be equal to tan inverse of x, all right, plus π/2 minus tan inverse of x plus 1 लिख सकते हैं ना। Now let us solve further. अब देखो इसमें हमारे पास y is coming out to be π/2 को अलग लिख के let us write in the bracket tan inverse of x माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, दैट इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। ठीक है ना, माइनस है देखो, तो क्या प्रॉपर्टी होती है, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, दिस प्रॉपर्टी। So let's apply this property over here and see what do we get. So let's write now, y will be equal to π/2 plus tan inverse of। ठीक है, तो ये देखो ये प्रॉपर्टी आपको विजिबल है, तो हम ये प्रॉपर्टी अब अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कर दो x माइनस x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू x प्लस 1। Got it? Let's see what do we get. So we are getting y is equal to π/2 plus tan inverse of x से x देखो कैंसिल हो जाएगा, we are getting -1 upon 1 plus x square plus x। All right, ये
अब जो एक नेक्स्ट रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे वो ये होगा कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है minus of tan inverse of x. All right, we know this result and this is true for all x belonging to R. तो माइनस हम बाहर लेकर आ सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाला माइनस आउटसाइड लेकर आते हैं. सो वी आर गेटिंग y इज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ऑल राइट, वी आर गेटिंग दिस. अब देखो tan इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स क्या होता है. वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x इज नथिंग बट cot इनवर्स ऑफ x if x इज पॉजिटिव. ऑलराइट, तो ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव आएगा और x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है. तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो tan इनवर्स ऑफ 1 by x कैन बी रिटन एज cot इनवर्स ऑफ x. दैट मीन्स वी हैव y इक्वल टू पाई बाय 2 एंड माइनस cot इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. इज इट ओके? अब फिर से लास्ट में हम यही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने बिगनिंग में लिखी थी. देखो कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज पाई बाय 2. तो पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x अगर आपके पास होगा, that you can replace by tan inverse of x. So let me apply this property at this point. All right, ये देखो, तो पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 will be tan inverse of x square plus x plus 1. So that is the value of y. ठीक है, ये आंसर आ गया बेटा. तो सिंप्लीफाई करके वी आर गेटिंग tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. देखते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. ऑलराइट, tan inverse of x square plus x plus 1 is D option. तो that means in this case D option is correct. तो आपने देखा इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं. एक हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज पाई बाय 2, फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली, फिर हमने आगे यूज करी tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x इज cot इनवर्स ऑफ x. देन वी ऑल्सो यूज दैट tan इनवर्स ऑफ माइनस x is minus of tan inverse x. ठीक है, तो you know it's all about properties. All right, let's see the next question, and before we move on to the next question, let me remind you to subscribe to the channel and hit the bell icon. All right, so let's see the next question now. Look at question number 8. 8th question ये है, sin inverse of 4 by 5 plus 2 tan inverse of 1 by 3 की हमें वैल्यू चाहिए. ऑलराइट, अब देखो ये टर्म साइन इनवर्स में है, तो इस टर्म को हम या तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. ऑलराइट, या फिर tan इनवर्स में पहले. अब देखो अगर इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो. आपके पास देखो तीनों फॉर्मूले होते हैं. 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स में भी होता है, कॉस इनवर्स में भी होता है और साइन इनवर्स में भी होता है. जिसमें मर्जी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहां पे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. लेट मी यूज वन प्रॉपर्टी विच वी हैवंट यूज टिल नाउ. कॉस इनवर्स वाली यूज करके देख लेते हैं. ऑलराइट, तो 2 tan इनवर्स x कितना होता है? कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. आपको पता है इसको साइन इनवर्स में लिखते हो तो इट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. tan इनवर्स में लिखते हो तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो लेट मी राइट दिस एज y. तो जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो y इज साइन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 5 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 3. तो लेट मी कन्वर्ट दिस टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल. ऑलराइट, तो ये वाली टर्म हम कन्वर्ट करते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ 1 by 3 बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. तो लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. 2 tan इनवर्स ऑफ 1 by 3 will be cos inverse of 1 minus 1 by 3 का square and divided by 1 plus 1 upon 3 का square. Let's see what do we get. This will be equal to cos inverse of 1 minus 1 upon 9. Alright, ये देखो. तो we have 1 minus 1 upon 9, 1 plus 1 upon 9. Take LCM. LCM will get cancelled. So we have cos inverse of 8 upon 10, which can be written as cos inverse of 4 upon 5 beta.
तो ये वैल्यू आई है किसकी, tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan इनवर्स 1/3 की। इसको हम पुट कर देते हैं यहां पे, तो y कितना हो गया, sin इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5. All right, so let me write y over here. That means now y is equal to sin inverse of 4/5 plus we have cos inverse of 4/5. अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, let me write over here. Next property that we are going to use will be this. Just a moment. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे बेटा वो हमारी ये वाली हो जाएगी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है कितना, π/2। जब x बिलोंग कर रहा है आपकी डोमेन को कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स x की, विच इज -1 to 1। तो यहाँ पे 4/5 -1 to 1 इंटरवल के बीच में है, तो दैट मीन्स y विल बी इक्वल टू π/2। ऑलराइट, दैट्स द आंसर। लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। So as you can see in this question, we have here π/2, that means A option. तो correct option will be A. ठीक है बेटा, तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने यूज करी हैं, इसको कन्वर्ट किया इस प्रॉपर्टी से, और फिर sin इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 4/5 will be π/2. All right. Let's see the next question now. Look at now question number 9 बेटा। 9 में है इफ tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इज 2π/3, तो x की वैल्यू बतानी है। करते हैं इसको सॉल्व, ये देखो। सो लेट अस नाउ राइट द इक्वेशन। इसमें इक्वेशन दी है एंड वी हैव टू फाइंड x। tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3। अब देखो क्योंकि पहली टर्म tan इनवर्स में है, तो we would like to convert cot inverse x in terms of tan inverse x. So we are going to use this property, tan inverse x plus cot inverse x is π/2 for all x belonging to R. So using this property, we will convert cot inverse x. It can be written as π/2 minus tan inverse x because first term is in tan inverse x. So let's apply this property. So I have tan inverse of x plus 2 times we have π/2 minus, look here, tan inverse x. All right. This is equal to 2π/3. अब ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, ब्रैकेट्स ओपन कर दो। तो I have tan inverse x plus pi minus 2 tan inverse x is equal to 2π/3 बेटा। इज इट ओके, या क्या? तो हम एक काम करते हैं, पाई को उधर ले जाते हैं। tan inverse x minus 2 tan inverse x is minus tan inverse x. Right side will be 2π/3 minus pi. Take LCM, you will get right side to be equal to minus pi/3. So we have minus tan inverse x is equal to how much? Minus pi/3. माइनस कैंसिल करो दोनों तरफ, तो tan इनवर्स x की वैल्यू बेटा कितनी आई है, π/3। अब x निकाल लो, कितना आ गया, x इज इक्वल टू tan π/3 विच इज tan 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू √3। इज इट ऑल राइट? दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। तो x इज tan π/3 विच इज √3। चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो जरा, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो √3 मीन्स सी ऑप्शन, तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। तो वी हैव सिंपली यूज्ड दिस वन प्रॉपर्टी। ऑलराइट, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने कॉट इनवर्स x को रिप्लेस किया और हमारी पूरी इक्वेशन tan इनवर्स x में आ गई। राइट, तो ना कोई भी क्वेश्चन इनवर्स का आता है तो थोड़ा सा फ्यू सेकेंड्स लेके पहले ये सोचो कि क्या बेस्ट सूटेबल मेथड रहेगा, किसको कन्वर्ट करें। ऑलराइट, इंस्टेड ऑफ कि हम tan इनवर्स x को थीटा पुट करना शुरू कर दें और आगे करें, तो जस्ट टेक अ मोमेंट टू contemplate in your mind कि what is the best approach towards solving this question. All right, let's see the next question now. अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन है, we have to find the value of sin of 4 tan inverse 1/3।
अब देखो यहाँ पे 4 tan इनवर्स 1/3 है, तो हम इसको 2 इंटू 2 लिख के ये वाली प्रॉपर्टी पहले अप्लाई कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x की। क्योंकि 4 है तो 2 बार ही अप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसमें tan इनवर्स की फॉर्म में ही इसको लिख लो। तो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी 4 tan इनवर्स 3 आता है तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी बेटा 2 बार अप्लाई होगी। देखते हैं कैसे, लेट अस सी। तो लेट मी राइट दिस एज y. So y is equal to sine of 4 of tan inverse of 1/3. Is it okay? अब देखो इसको हम लिख सकते हैं sine of, ऑब्जर्व करो, हाउ कैन वी राइट इट, ऑलराइट। तो यहां पे देखो अब, तो दिस इज 2 अलग कर लो और ये 2 tan इनवर्स 1/3 को हम करेंगे अलग। ये 2 tan inverse 1/3 में we are going to apply this property. So in place of x we have 1/3. All right. तो y is coming out to be sine of, ये 2 as it is रहने दो, तो ये बन गया कितना, tan inverse of, all right, 2x upon 1 minus x square. तो एक तरह से x कितना है 1/3. तो let me apply 2 into 1/3 divided by 1 minus 1/3 का square. All right, ये हो जाएगा बेटा. So this is the property, tan inverse of 2x upon 1 minus x square. Now we have y equal to sine of 2 tan inverse. Let us simplify this. This is coming out to be 2/3 upon 1 minus 1/9, which is 8/9. Is it all right? कितना बन जाएगा 3/4. So y is equal to sine of 2 tan inverse 3/4 बेटा. All right? अब आप देखो फिर से हमारे पास 2 tan inverse x आ गया. अब बाहर साइन है, तो चाहे तो हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करके आगे सॉल्व कर सकते हैं, या साइन है तो डायरेक्टली इसको साइन इनवर्स में ले आते हैं. तो देखो 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स में तो ये फॉर्मूला होता है. अब हमारे पास 2 tan इनवर्स x बेटा इसके भी इक्वल होता है. इट इज साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इज इट ऑल राइट? तो इट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो. क्यों? क्योंकि बाहर हमारे पास साइन है, तो साइन इनवर्स आएगा, तो दीज फंक्शंस विल गेट कैंसल्ड. So let's apply this property now. तो let me apply it over here. Alright? तो x के बदले में कितना है 3/4. तो we are getting now y is equal to sine of sine inverse of 2x. That means now x is 3/4. तो 2 into 3/4 upon 1 plus x square. तो 1 plus 3/4 का स्क्वायर बेटा. ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज y. सो y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, व्हाट आर वी गेटिंग 3/2. न्यूमरेटर इज 3/2 एंड डिनोमिनेटर 1 plus 9/16. Isn't it? Let's simplify. So we have y equal to sine of sine inverse of 3/2, all right, and divided by या multiplied by कह लो 16/25. 2 कैंसिल कर दो, यहाँ पे आ गया हमारे पास 8. So y is equal to sine of sine inverse of 24/25. अब आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हो कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू -1 to 1. डोमेन में बिलोंग करता है. तो 24/25 इज डेफिनेटली लेस देन 1. तो दैट मीन्स वी गेट y टू बी इक्वल टू 24/25. गॉट इट? तो डायरेक्टली क्योंकि बाहर साइन था तो हमने इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया. आप चाहो तो इसको पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर आपको tan इनवर्स को साइन इनवर्स में करना पड़ेगा. तो कोई पॉइंट नहीं है जब हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हम इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इजंट इट? इसको राइट. तो आंसर आया है 24/25. दैट मीन्स वी हैव बी ऑप्शन टू बी करेक्ट.
ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. Is it okay? Let's move on to the next question now. So the next question is question number 11. We have to evaluate 4 tan inverse 1 by 5 minus tan inverse 1 upon 239. अब फिर से देखो 4 tan inverse 1 by 5 है. अब इसमें क्योंकि सेकेंड टर्म tan inverse में है तो दो बार हम 2 tan inverse x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan inverse की टर्म्स में. एज आई टोल्ड यू 4 होता है तो यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर 2 tan inverse x 2 times. All right. So in this case the property that we are going to use would be that 2 tan inverse of x is equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square बेटा. ठीक है ना, तो अप्लाई करते हैं. लेट अस डिनोट द गिवन एक्सप्रेशन बाय y. सो वी हैव y इक्वल टू 4 tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 5 एंड माइनस वी हैव tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 239. सबसे पहले हम ये टर्म सॉल्व करते हैं 4 tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 5. तो लेट मी सॉल्व दिस. सो 4 tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 5. दिस कैन बी रिटन एज 2 times 2 tan inverse of 1 upon 5. अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो कि 2 tan inverse x is 2x upon 1 minus x square. Here we have x to be equal to 1 upon 5. तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. We get 2 times tan inverse of 2x, that is 2 into 1 upon 5 upon 1 minus x square, that is 1 upon 25. Got it? Let's simplify and see what do we get. So this is coming out to be 2 tan inverse of, this is 2 upon 5 और देखो LCM लोगे you will have 25 और divided by 24. Cancel करो तो we are getting this to be equal to 2 tan inverse of कितना 5 upon 12. अब देखो फिर से 2 tan inverse x की फॉर्म आ गई एंड बिकॉज द सेकेंड टर्म इज इन tan इनवर्स तो फिर से हम यही वाली प्रॉपर्टी बेटा अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज द अदर टर्म इज इन tan इनवर्स. सो लेट्स डू दैट. ऑलराइट, तो यहां पे देखते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं फिर से सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करके. तो दैट मीन्स नाउ दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x. अब x की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 12 है बेटा. तो अब हम ये अप्लाई करते हैं. तो नाउ वी आर गेटिंग 2 into 5 upon 12 divided by 1 minus 5 by 12 का स्क्वायर which is 25 upon 144. That means we have this to be equal to tan inverse of, this is 5 upon 6 divided by, this will come out to be 119 upon 144. Is it all right? तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो. दिस इज tan इनवर्स ऑफ हाउ मच 5 by 6 multiplied by 144 upon 119. ये कैंसिल कर लो, ये कितना आ जाएगा 24 बेटा. तो दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ 120 upon 119. 24 into 5 would be 120. ये किसकी वैल्यू आई है देखो, this is 4 tan inverse 1 by 5. So that means 4 tan inverse 1 by 5 is equal to this. All right, ये इसके इक्वल है बेटा. अब देखो हमें क्या इवेल्युएट करना था. We need to calculate this. 4 tan आपको पूछा ये था, y ये था 4 tan inverse of 1 by 5 and then we have minus tan inverse of 1 upon 239. तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि हमने निकाली है tan inverse of 120 upon 119 and minus tan inverse of 1 upon 239. Alright, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. कौन सी देखो, अब जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो ये वाली होगी. लेट मी राइट ओवर हेयर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू नाउ यूज विल बी tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y. ऑलराइट, तो देखो किसके इक्वल होता है. यू नो दैट इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
x minus y upon 1 plus x into y. So, ये दो प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में यूज हो रही हैं. तो अब हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं. लुक हियर, tan inverse x minus tan inverse y की प्रॉपर्टी. So, y will be equal to tan inverse of x minus y, that is 120 upon 119 minus 1 upon 239 divided by 1 plus 120 upon 119 into 1 upon 239. Is it okay? ये इसमें देखो आप एलसीएम ले सकते हो, तो 119 इंटू 239 आपका कैंसिल हो जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज 120 मल्टीप्लाइड बाय 239 माइनस 119 एंड डिवाइडेड बाय, यहां पे एलसीएम लेके आएगा 119 इंटू 239 और प्लस कितना 120. ओके, ये हो जाएगा. तो इसको सॉल्व कर लो. यू विल बी गेटिंग ऑन सॉल्विंग tan इनवर्स ऑफ 1. यस, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके यहां माइनस कर लो, ये ऐड कर लो, यू विल गेट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम. दैट मीन्स tan इनवर्स 1. तो tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाय 4 बेटा. तो आंसर विल बी पाई बाय 4. इज इट ओके? So let us check which option is correct. So as you can see in this question, we have correct option to be D. D में दिया है ना पाई बाय 4, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गई D, राइट? तो ये दो प्रॉपर्टीज आपने यूज करनी है. क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं. Look at now question number 12th. 12th question is we have to obtain sine of 2 tan inverse 1 by 3 plus cos of tan inverse 2 root 2. Alright, let's see how to calculate this value. Again, let us denote it by y. So, we have sine of 2 tan inverse of 1 upon 3 plus I have cos of tan inverse of 2 under root of 2. अब एक चीज नोटिस करो, यहां पे tan इनवर्स है, यहां पे साइन है और अभी 2 tan इनवर्स है. तो सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि 2 tan इनवर्स ऑफ x कैन बी रिटन एज, अब बाहर साइन है तो उसको साइन इनवर्स में सीधा कन्वर्ट कर लेते हैं. तो दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इजंट इट? क्यों ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं? बिकॉज बाहर साइन है बेटा. तो लेट मी अप्लाई. तो y will be equal to sine of, this will be sine inverse of, in place of x we have 1 by 3. तो we have 2 into 1 upon 3, 1 plus 1 upon 3 का square, that is 1 upon 9. Is it okay? अब यहां पे देखो ये cos और ये tan inverse है, तो एक काम करते हैं, assume this as angle phi. मान लो ये phi है, तो एक तरह से दूसरी टर्म हमारे पास क्या आ गई? cos phi, where we have tan phi is equal to 2 under root of 2. तो राइट ट्राइंगल से cos phi निकल आएगा. ऑलराइट, ये देखो, let us use now right angled triangle. So what are we getting? Let us observe. tan होता है आपका perpendicular upon base. तो perpendicular is 2 root 2, base is 1. पाथागोरस थ्योरम अप्लाई करो. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. दिस इज एंगल फाई. तो इट विल बी इक्वल टू 2 रूट 2 का स्क्वायर विच इज 8, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज इक्वल टू 9. सो दिस इंप्लाइज हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 3. ऑलराइट, दिस विल बी 3. तो ये हमारे पास आ गया 3. तो वी रिक्वायर cos phi. तो फ्रॉम हेयर cos phi will be equal to base upon hypotenuse, that is 1 upon 3. राइट, ये आ जाएगा. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. देखो y कितना आ गया? लेट अस सी. साइन और साइन इनवर्स विल गेट, पहले इसको सॉल्व कर लो. चलो देखो कहाँ लाई कर रहा है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं. इट इज 2 by 3, 1 plus 1 by 9 will be 10 by 9, मतलब 9 upon 10. और cos phi की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 1 upon 3 बेटा. ऑलराइट, दिस वी हैव कैलकुलेटेड सेपरेटली. अब यहां पे आ गया y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3 by 5.
ऑल राइट, प्लस 1/3. नाउ वी नो दैट, अब हम ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे यूज करेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ x, दिस इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू डोमेन -1 to 1. इज इट ओके? तो हमारे पास यहाँ पे 1/3 जो है बेटा, सॉरी 3/5 -1 to 1 को बिलोंग कर रहा है, तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर गेटिंग y टू बी इक्वल टू 3/5 plus 1/3. Take LCM and simplify. So LCM will be 15. We have 9 plus 5. That means it is coming out to be 14/15. Alright, that should be the answer. So let us check which option is correct. Alright, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें 14/15 is B option. So that means B option will be correct बेटा. Clear हो गया? So this was question number 12th. Let's move on to now question number 13th. तो ये देखो question number 13th. इसमें आपको कहा गया है कि if tan inverse x plus tan inverse y is π/4, तो आपको बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. इसमें तो देखो सीधी सीधी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे tan inverse x plus tan inverse y वाली. तो let me write what is given to us. We are given that tan inverse x plus tan inverse of y is equal to π/4. So what we can do is, on the left hand side we can apply the property tan inverse x plus tan inverse y. So it is tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy. यही होगा ना? And this is equal to π/4. Take tan inverse on the other side. So we get x plus y upon 1 minus xy is equal to tan π/4. You know that tan π/4 is 1. Alright. तो इसका मतलब x plus y upon 1 minus xy is equal to 1. Cross multiply. That gives you x plus y as 1 minus xy. Take this term minus xy on the left hand side. We get x plus y plus xy is equal to 1. Is it okay? This will be the answer. So x plus y plus xy is equal to 1. Let us check. So you can see x plus y plus xy equal to 1. That means A option is correct. So let us write the correct option. That is A. So we are just using this property कि tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to this. All right. तो सिंपल क्वेश्चन था. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. वी हैव साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स 1/5. अब नोटिस करो बाहर साइन है और ये 3 साइन इनवर्स है, तो 3 को रिमूव करें तो साइन और साइन इनवर्स आ जाएगा ना. तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें? वी नो दिस प्रॉपर्टी कि 3 साइन इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होता है बेटा? इट इज साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब. तो लेट्स अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. तो यहां पे 3 हट जाएगा और ये साइन इनवर्स आ जाएगा. तो वी आर गिवन y to be equal to sine of, we have 3 sine inverse of 1/5. तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. x है हमारा 1/5. तो let us apply this property now. तो this will be equal to sine of 3 into x. That means what do we have? Look here. तो ये वाली प्रॉपर्टी देखो अप्लाई कर रहे हैं. तो it is 3 into 1/5 minus 4 into 1/5. Sorry, sin inverse आएगा पहले. All right. Let me write it again. Just a moment. इसको एक बारी दोबारा लिख लेते हैं बेटा. तो this can be written as sine of sin inverse of, all right, 3x minus 4x cube. So 3 into 1/5 minus 4 into 1/5 का cube. या क्या? Let's see what do we get. Y is equal to sine of sine inverse of. Let us simplify. This is 3/5. This is minus 4/125. Right? Take LCM. तो ब्रैकेट के अंदर LCM ले लो. लॉजिकल स्टेप है. तो y हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ
कितना? LCM is 125. 25 3s are 75. 75 minus 4 will be 71. अब हम ये वाली प्रॉपर्टी देखो अप्लाई करेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ x is equal to x if x belongs to closed interval -1 to 1. अब हमारे पास आया है 71 upon 125 which belongs to closed interval -1 to 1. This implies value of y is 71 upon 125. Got it? तो ये वैल्यू है. चेक करें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. तो यहां पे देखो 71 upon 125. तो देखो A ऑप्शन में है. तो दैट मीन्स हेयर A ऑप्शन विल बी करेक्ट. समझ में आ गया बेटा? ये क्वेश्चन था. तो यहां पे सबसे पहली चीज तो यही है, ये साइन है, ये 3 साइन इनवर्स है, तो ये 3 को रिमूव करना है. तो उसको रिमूव करने के लिए वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. फिर एंड में आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. ठीक है. अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 15. इसमें आपको फिर से इक्वेशन दी है. इफ 2 tan inverse of cos x is tan inverse of 2 cosecant x, then we have to find the value of x. तो देखो कैसे आएगी. Let me write the equation first. We have 2 tan inverse of cos x. This is equal to tan inverse of cosecant 2 cosecant x. Is it okay? अब नोटिस करो यहां पे tan इनवर्स के आगे 2 है. राइट साइड पे तो tan इनवर्स ही है, तो इस 2 को एलिमिनेट करना है. तो वी कैन यूज द प्रॉपर्टी दैट 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्यों tan इनवर्स में कर रहे हैं? क्योंकि राइट साइड tan इनवर्स में है. अगर वो साइन इनवर्स में होती तो हम साइन इनवर्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर ये कॉस इनवर्स में होता तो हम लिखते 2 tan इनवर्स x इज कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. बट बिकॉज इट इज इन tan इनवर्स तो हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इस टर्म के लिए. In place of x we have cos x, तो right side पे भी in place of x we will take cos x. So let's apply this property. All right. So left side will become tan inverse of 2 into cos x divided by 1 minus cos square x. Got it? और right side देखो, right side is tan inverse of 2 cosecant x का meaning 2 upon sin x. तो tan इनवर्स कैंसिल कर दो दोनों तरफ. हमारे पास इक्वेशन आ गई 2 cos x अपॉन sin square x बिकॉज 1 माइनस cos square x is sin square x. दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन sin x. अब देखो इक्वेशन में अगर न्यूमरेटर में कोई वेरिएबल होता है तो उसको कैंसिल नहीं करते, कॉमन लेके 0 पुट करते हैं, उससे हमें रूट मिलता है. बट डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म हो तो वो नॉन जीरो होती है. तो डिनोमिनेटर में आप साइन एक्स कैंसिल कर सकते हो, तो यू विल बी लेफ्ट विद 1 साइन एक्स. और न्यूमरेटर में 2 कैंसिल कर दो, वो तो कांस्टेंट है. सो वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर दैट साइन cos x अपॉन साइन x मीनिंग cot x इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू नथिंग बट पाई बाय 4. इज इट ओके? तो ये आंसर आ जाएगा. x है पाई बाय 4. तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है बेटा. तो आप देखो यहाँ पे पाई बाय 4 एज यू कैन सी बेटा बी ऑप्शन में है, तो वी हैव बी ऑप्शन टू बी करेक्ट. तो इसमें हमने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में बेटा कन्वर्ट किया किसमें? tan इनवर्स में. इज इट ओके? So in this lecture you have seen we have done questions objective type on the chapter inverse trigonometric functions. All right. आपने देखा कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. तो जितनी भी हमारी इनवर्स की प्रॉपर्टीज हैं वो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए. ठीक है, ज़्यादा कोई और कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी इस लेक्चर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे उनको करने के लिए.
इज इट ऑल राइट? तो इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो अगले में भी हम इनवर्स के ही कुछ और एमसीक्यूज लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से इस चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाए. So meanwhile, keep revising and don't forget to subscribe to our channel. All right. So I hope you are enjoying the benefit of our courses. Thank you and bye-bye.